Hello guys, good morning. So we were doing chapter angles and we are going to continue with it. Okay. So we have already learnt about supplementary angles, complementary angles. Okay. So now we are going to start with another topic and the name of the topic is opposite rays. Okay. So first we will complete this. Then we will talk about angles in a linear pair. You will soon understand what it means. And then we will be learning about vertically opposite angles. Okay. So let's start with opposite rays. The signal is red, that is Bhaiya will be doing. You will be just seeing. And then I will give you the time to write. Okay. See the drawing that I am drawing. Okay. Or the drawing that I am making. This is point A. This is point B. And this is point C. Now you don't have to write, you just have to understand. Okay, and this is the angle. Okay, you know I can write it as angle ABC और angle CBA, right? बीच में क्या आता है, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज B. तो ABC लिखो या CBA लिखो, एक ही बात है. ठीक है, ग्रेट. अब मेरे को बताना है कि ये जो एंगल ABC मैंने कंस्ट्रक्ट किया है इसमें ऑपोजिट रेस कहां पर है. ठीक है. So the first question is, what do you mean by ray? You have already learnt about line segment and rays. So what do you mean by ray? ठीक है, पहली बात. तो अगर आप बोलते हो भैया कि इस फिगर में बी ए एक रे है क्योंकि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है बट कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, सो यू आर करेक्ट. सिमिलरली बी सी इज ऑल्सो अ रे, राइट, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट बी है बट कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है. ठीक है, तो ये तो हो गया, दो रे आपको मिल रहा है इस फिगर से. बट क्या ये ऑपोजिट है, आप कैसे समझोगे? तो मैं एक बार कलर चेंज करता हूं. ठीक है, ये वाला रे और ये वाला रे ऑपोजिट कब होंगे, तो कैसे आप समझोगे? ठीक है, आई वॉन्ट यू टू थिंक फॉर 5 seconds एंड देन कम बैक. सोचो ये ऑपोजिट है कि नहीं, या कोई आप सिचुएशन बता सकते हो जब ये ऑपोजिट होंगे, या कोई कंडीशन जब ये ऑपोजिट होंगे. ओके, कमिंग बैक. तो दो जो रेज है, ये ऑपोजिट कब होते हैं पता है? इनका जब एक कॉमन पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन. यहाँ पर क्या है पॉइंट ऑफ ओरिजिन? पॉइंट बी. पॉइंट बी से मैं दो रेज कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑपोजिट रेज. व्हेन आर द टू रेज ऑपोजिट? व्हेन दे हैव अ कॉमन ओरिजिन. ठीक है, व्हेन दे हैव अ कॉमन ओरिजिन. हियर द कॉमन ओरिजिन इज पॉइंट बी. Okay, so two rays which have a common origin and form a straight line are said to be opposite rays. Two rays which have a common origin and they form a straight line. This is a straight line, this is a straight line. When they form a straight line, those rays are called as opposite rays. Are you clear? So if I make another figure, okay, take for example, the figure looks like this and I will label it as point P, point Q and point R. My first question to you is, as you see this photo or the angle, that is angle PQR or angle RQP, can you tell me what is the point of origin? मतलब कॉमन पॉइंट कौन सा है आप बता सकते हो जहां पर दो रे कनेक्ट हो रही है. ठीक है, सो यस डेफिनेटली इट इज पॉइंट Q. और दो रे क्या है? वो है QP एंड QR, राइट, क्योंकि पॉइंट Q से आपका रे स्टार्ट हो रहा है एंड वन इन दिस डायरेक्शन, अनदर इन दिस डायरेक्शन. सो QP and QR are opposite rays and the point of origin is point Q and QP and QR form a straight line. ठीक है, so now I will give you 30 seconds, take a note of it and then we will move on to the next topic. Your time starts now. I'll turn the signal to green. You have 30 seconds. Okay, coming back, I will clear the screen. ठीक है, I will give you the question in the worksheet and then you can solve it. Now we will move on to the next topic. Okay, again I will turn the signal to red and this is an important topic. Bhaiya will be doing it, you will be just understanding, and if you have any doubts you will be noting it down. Great. The topic is angles in
अ लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है, कुछ समय में क्लियर हो जाएगा इशू आपका। तो मैं एक फिगर बनाता हूं, ये पॉइंट P है, ये Q है, ये S है एंड ये R है, पॉइंट R, P Q एंड S। ठीक है, आपको याद होगा जब आप पढ़ रहे थे सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, राइट, जब ये दो एंगल्स का सम 180 होता है तो ये सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर भी सिमिलर है। लीनियर पेयर क्या बोलता है, angles which have a common arm, ठीक है, and whose other arms form a straight line are said to be angles in a linear pair. Angles which have a common arm, ठीक है, ये एंगल है, एंगल PQR एंड एक है एंगल SQR। ठीक है, उनका कॉमन आर्म क्या हो गया, QR, राइट, QR इनका कॉमन आर्म है। ठीक है, किन दो एंगल्स के लिए, एंगल PQR एंड एंगल SQR। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जिसके लिए कॉमन आर्म है QR। ठीक है, एंड हुज अदर आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, जो QR है ये वाला आर्म, उसके अलावा जो दो आर्म है वो स्ट्रेट लाइन बनाती है। देखो स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, आप लोग पढ़े हो, राइट। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मेजर 180 डिग्री आप प्रोट्रैक्टर में भी देख सकते हो। तो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, एक कॉमन आर्म होता है, एक कॉमन आर्म होता है और बाकी जो दो आर्म है वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन बनाते हैं मतलब ये जो दो एंगल है, दैट इज एंगल PQR प्लस एंगल SQR, वो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब उनका सम 180 डिग्री होगा, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट इज वो दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दूसरी चीज ये होती है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ये देखो PS आपका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये होता है लीनियर पेयर व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स और द सम ऑफ द एंगल्स इन द लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, देयर इज अ कॉमन आर्म एंड द अदर टू आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये सब मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस। यू हैव गुड 30 seconds, the signal is green, good 30 seconds and then we will proceed, we will do a question. Okay, coming back, I will clear a screen. एक क्वेश्चन करते हैं, we will do it together. We do, the signal is green, you can write along with me. Okay, so अगर मैं आपको एक ये फिगर देता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ इसका मेजर 40 डिग्री है। ठीक है, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, और मैं बोलता हूँ कि द एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABD, मतलब ये वाला जो एंगल है इसका आपको मेजर निकालना है। ठीक है, तो व्हाट विल यू डू, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। अगर आपको बता दिया गया है कि वो लीनियर पेयर है, इसका मतलब जो एंगल ABD है प्लस एंगल CBD है उसका सम 180 होना चाहिए, और आपको इसका ऑलरेडी मेजर दे दिया है 40 डिग्री, तो आप इसका निकाल लोगे। जब ये नहीं पता है तो वो x है, x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, मतलब 40 में क्या और ऐड करोगे कि 180 आएगा। तो आप क्या करते थे, इसका साइड चेंज करते थे, दैट इज 180 माइनस 40, तो x क्या आ गया 140, मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो ये 140 होना ही पड़ेगा, तभी तो दोनों का सम 180 होगा। लीनियर पेयर बनाएंगे या सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, so this is how we solve the question. Take good 1 minute, note it down and then we will come back. If you have any doubts, just note it down. Okay, coming back, I will clear the screen. Okay guys, let's do the last part of this session. Okay, so we are going to learn what do we mean by vertically opposite angles. The signal is again red and Bhaiya is going to do, you will be just learning and then I will give you the time. ठीक है, अगर मैं दो लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है, ये दो लाइंस, तो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट में आके मिल रही है, राइट, इसके कारण कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, तो ये जो एंगल है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ एंगल 1 और एंगल 2, वो एक दूसरे के सामने वर्टिकली ऑपोजिट है, और सिमिलरली जो एंगल 3 है एंड एंगल 4 है वो एक दूसरे के सामने वर्टिकली ऑपोजिट है,
इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और ये जो एंगल्स है मतलब एंगल 1 और एंगल 2 वो इक्वल होते हैं और एंगल 3 एंड एंगल 4 वो इक्वल होते हैं। हम समझेंगे इक्वल क्यों होते हैं, ये हम डिराइव करेंगे, बट मेन ये बता रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तब बनता है जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है, उनके इंटरसेक्ट होने से ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बारे में कुछ पढ़ता हूँ। The angle formed by the opposite rays of the arms of an angle is said to be its opposite angle, ठीक है। तो अगर ये है, ये दोनों opposite क्यों है? Because this is the angle formed by the opposite rays of the arms। देखो ये दोनों जो एंगल है हम पढ़े हैं, इनको क्या बोलते हैं, राइट इनको बोलते हैं ऑपोजिट रेज, है ना, क्योंकि इनका एक कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ये कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, तो ये वाला जो रे है और ये वाला जो रे है वो क्या है, ऑपोजिट रेज है। सिमिलरली जो ये वाला रे है और ये वाला रे है, दिस एंड दिस, ये दोनों ऑपोजिट रेज है। तो ये जो रे है ऑपोजिट रेज ये एक एंगल बना रहे, ये जो ऑपोजिट रेज है ये एक एंगल बना रहे, और ये दोनों एंगल को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये ऑपोजिट रेज एक एंगल बना रहे, तो इसको वर्टिकली ऑपोजिट बोलते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये फिगर देखूं तो ये रे ऑपोजिट है तो ये एक एंगल बना रहे हैं, ये रे और ये रे ऑपोजिट है क्योंकि कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये है और ये दोनों ऑपोजिट लाई करते हैं, ये एक एंगल बना रहे हैं। ये दोनों एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखो इसका अपना प्रूफ देखते हैं। अगर मैं फिगर बना रहा हूं, इसको मैं लेता हूं एंगल 1, इसको लेता हूं एंगल 2, इसको लेता हूं एंगल 3 और एंगल 4। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे। देखते हैं कैसे। देखो अगर आप पहला इक्वेशन बनाओ तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होना चाहिए, आपको पता है। लीनियर पेयर आपको याद है ना, अगर ऐसे आप बना रहे हो और ये स्ट्रेट लाइन है, ये कॉमन आर्म है, तो ये दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे इस फिगर में, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कॉमन आर्म है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होना चाहिए। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 भी 180 होना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये भी लीनियर पेयर है, ये स्ट्रेट लाइन, ये कॉमन आर्म और ये दोनों एंगल, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 और 2 180 के इक्वल है, 2 और 3 180 के इक्वल है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन से डिराइव करके, फर्स्ट और सेकंड से। अगर 1 और 2 का सम 180 डिग्री है, 2 और 3 का भी सम 180 डिग्री है, इसका मतलब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, क्योंकि दोनों का सम तो 180 है ना। तो ये दोनों इक्वेशन को बस मैं लिख रहा हूँ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, दोनों तरफ एंगल 2 है, सेम सेम जो दोनों तरफ होता है वो कट जाता है, तो इससे डिराइव होता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। आपको यही डिराइव करना था, ठीक है। सिमिलरली आप डिराइव कर सकते हो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। वो कैसे करोगे, एक इक्वेशन आपका बनेगा कि एंगल 1 प्लस एंगल जो 4 है वो 180 डिग्री है, और एक एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो समरी ये है कि दो एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट कब होते हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, जिसके कारण ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंड फिर उसके बाद ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। तो नाउ आई विल टर्न द सिग्नल टू green, that is you will take good 1 minute to note it down and then we will come back. Your time starts now. Okay, coming back, I will clear the screen. एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 20 में एक साथ करते हैं। यू कैन ऑल्सो डू, ठीक है, अलॉन्ग विथ मी वी विल डू। पेज नंबर 30 है मैथ्स टेक्स्ट बुक का, ठीक है। आपको क्या दिया, एक फिगर दिया है, ये बोल रहा है पॉइंट पी है, पॉइंट आर है, एम है, एस है, क्यू है, ठीक है। ये एक्स डिग्री है, बीच में एम है, ये जो मैंने लिखा है। लाइंस पी क्यू एंड आर एस, लाइंस पी क्यू एंड आर एस जो है इंटरसेक्ट कर रही है एम में, ठीक है।
और एंगल जो है पी एम आर वो x डिग्री है, एंगल पी एम आर जो है वो x डिग्री है, ठीक है। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल पी एम एस, पढ़ते पी एम एस का है ये वाला एंगल, फिर उसके बाद एस एम क्यू मतलब ये वाला एंगल, और उसके बाद क्यू एम आर मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो आपको पता है अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ एंगल पी एम आर मतलब ये वाला इज इक्वल टू एंगल एस एम क्यू, राइट, मतलब ये वाला, ठीक है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ अगर ये x डिग्री है तो ये वाला मेजर भी x डिग्री होगा। यहाँ तक आपका क्लियर, ठीक है, मतलब ये x डिग्री है, यहाँ तक हो गया। अब आपको इन दोनों का भी मेजर निकालना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो आपको पता है अगर ये जो मैंने ब्राउन से बनाया इसको मैं लेता हूँ एंगल 1, ठीक है, और एक और ब्राउन से जो बनाया उसको लेता हूँ एंगल 3। आपको पता है एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल आएंगे क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट है। तो अगर आप कोई भी एक निकाल लेते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब जो एंगल 1 है प्लस एंगल एस एम क्यू है वो 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। मैं अच्छे से फिगर बनाता हूँ और मैं बताता हूँ किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये वाला एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल एस एम क्यू, ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। तो इससे मेरा एंगल एस एम क्यू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 1, राइट, 180 डिग्री माइनस एंगल 1, ठीक है। अब एस एम क्यू मेरा था x डिग्री और ये मेरा 180 डिग्री। अच्छा एक मिनट मैं इसको क्लियर करता हूँ, इसको ऐसे नहीं लिखते, आपको निकालना एंगल 1 है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल एस एम क्यू, ठीक है। इसको मैंने बस साइड शिफ्ट किया तो मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एस एम क्यू। एस एम क्यू क्या है मेरा x है, ये देखो x दिया हुआ था, तो ये मेरा आ गया एंगल 1 का मेजर, और यही मेरा एंगल 3 का भी आएगा, वो भी 180 डिग्री माइनस x होगा, राइट, सिंपल। तो आप ये करिए एंड फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा वर्कशीट में, वो आप सॉल्व करोगे। इसको मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ। आपको क्या दिया था, ये x है तो आपने बोला ये भी x है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। अब आपको पता है टोटल 180 डिग्री होता है, तो अगर इतने 180 डिग्री में इतना x है तो इतना क्या होगा 180 डिग्री माइनस x, राइट। और अगर ये 180 डिग्री माइनस x है तो ये भी 180 डिग्री माइनस x है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, सेम होते हैं, सिंपल, राइट। तो ये करिए एंड देन वी विल come back with the worksheet.